Okay, so this shortcut method is depend on only your right side function, that is f of x. Method of variation of parameter, that we will maybe we'll start this method in next lecture, that is depend on phi of d, and general method is also depend on phi of d. Okay, and what are those functions that we are considering under this shortcut method? Yes, just tell me few functions जो आपको याद आ रहे हैं. Exponential function, next a raised to x function, sin x plus b across ax plus b, very good. Then sin hyperbolic ax plus b cos hyperbolic ax plus b, and last two are e raised to x into v and x into v, means product of two function. ये product के केस में, okay, but these are the only distinct cases. Okay, इसके लिए भी एक रूल है, वो भी आपको मैं दे रहा हूँ, but these are the distinct cases. You can say this is in terms of product. Okay, and this is the table, or this is which include all the formulas of your shortcut method. So when we have exponential function, we have to just replace d by a. When we have a raised to x or a raised to minus x function, we have to just replace d by log a or log minus log a. When we have sine cos function, we have to replace d square by minus a square, as we know that इसका रीजन मैंने आपको दिया था, ठीक है, d square by minus a square and d square by minus a square for sine and cos function. Okay, and the next part is sine hyperbolic and cos hyperbolic, where we have to replace d square by plus a square. Okay, so I think ये already हमने start किया था, लास्ट का कुछ पार्ट पेंडिंग है जो अभी मैं कंप्लीट करता हूँ. एंड द थर्ड कॉलम विच इज द केस ऑफ फेल्यूर. व्हाट इज मीन बाय केस ऑफ फेल्यूर? क्या मीनिंग है केस ऑफ फेल्यूर का? एनीवन? Denominator is equal to 0. Denominator become 0. Okay, so in this case, when we replace d by a or d by a square or d square by a square or d square by minus a square or d by log a or minus log a, when we replace this, okay, if your denominator becomes 0, that become the case of failure. Okay, so how you remove this case of failure from that given particular integral? So in that case you have to multiply yp by x, आपको उसको x से मल्टीप्लाई करना है, एंड यू हैव टू रिप्लेस दिस फाई ऑफ डी बाय फाई डैश ऑफ डी. यू हैव टू रिप्लेस दिस फाई ऑफ डी बाय फाई डैश ऑफ डी, एंड अगेन यू हैव टू अप्लाई दैट सेम रिजल्ट. सो रिपीट दिस प्रोसेस, रिपीट दिस टू स्टेप्स until and unless you will get a नॉन जीरो डिनोमिनेटर. ये तब तक आपको रिपीट करना जब तक आपको एक नॉन जीरो डिनोमिनेटर नहीं मिलता, ठीक है. एंड आई थिंक वी ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल द एग्जांपल्स. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट मी डायरेक्टली come to this point. I think यही हमारा लास्ट पॉइंट था. ओके, नाइट ओके. सो yeah, so there is one remark आफ्टर दिस मेथड. ओके, आपने अभी क्या कंप्लीट किया था? इन केस ऑफ साइन फंक्शन एंड इन केस ऑफ कॉस फंक्शन वी हैव टू रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर, एंड वी ऑलरेडी कंप्लीटेड एग्जांपल्स ऑन दिस केस. ओके, so using these two function we have few more results, or simply using this function we can apply a shortcut method for the functions like sin a into cos b, cos a into sin b, sin a into sin b, cos a into cos b, sin square x and cos square x. इसका सिंपल मीनिंग क्या है? sin x and cos x का यूज़ करके ये जो रिजल्ट है या ये जो फॉर्मूला है डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस स्क्वायर, यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस शॉर्टकट मेथड फॉर द फंक्शंस लाइक sin a into cos b, cos a into sin b, sin a sin b, cos a cos b, sin square and cos square. Okay, but for this function we just need to perform or we just need to consider some simplification. So in case of sin a cos b, we have to replace this value by 1 by 2 sin of a plus b plus sin of a minus b. It's a simple trigonometric formula. In case of cos a sin b, we have to replace this value by 1 by 2 sin of a plus b minus sin of a minus b, like that. ठीक है. In case of sin square, we have to replace this value by 1 minus cos 2x by 2. 1 means e raised to 0x, and then you can apply a shortcut method 1 by 1 for exponential function and for cos function, cos trigonometric function. In case of cos square x also, we have to replace this function by 1 plus cos 2x by 2, where 1 is replaced by e raised to 0x, and individually we have to apply this shortcut method for exponential function and cos 2x function. Okay, so
Let us take one example on this part. Yeah. So solve the linear differential equation d square plus 1 times y is equal to sin x into sin 2x. So immediately from the example itself you have to fix your method कि आप शॉर्टकट मेथड से करने वाले हो या मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से जाने वाले हो या आप जनरल मेथड से जाने वाले हो. ओके, सो हियर यू कैन सी दिस ऑन दिस RHS you have a function which you can consider as a sub case of your sine function and cos function, है ना. It's a part of your sine function and cos function. It means you can solve this example, you can find general solution of this example using shortcut method. ये आपको देख के समझ में आना चाहिए कि राइट साइड में जो फंक्शन है वो शॉर्टकट मेथड का ही एक फंक्शन है. इट्स अ पार्ट ऑफ और इट्स अ फंक्शन ऑफ योर शॉर्टकट मेथड. इट मीन्स यू कैन अप्लाई द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड इट जनरल solution. Okay, so since your RHS is non-zero, it has two solution, complementary and YP, and complementary plus YP gives you the general solution. So let us first calculate the complementary function. For that we have to consider the auxiliary equation. ठीक है, so यहाँ पे शायद ये m नहीं होगा, but you have to use here m. So auxiliary equation is phi of m is equal to 0, that is m square plus 1 equal to 0. M square plus 1 equal to 0 means what? What are the roots? Plus minus 0. Plus or minus I, complex roots. Okay, plus or minus I. Then can anyone tell me what is YC? E raised to real part is not there, so e raised to 0x c1 cos. Imaginary part is 1. I का coefficient 1 है, so 1 into x is this c2 sin x. Correct? This is your YC. Is there any problem with this complementary function? सबको क्लियरली समझ में आ रहा है ना? क्योंकि सी वी हैव ओनली 3 लेक्चर्स इन अ वीक. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लेक्चर हो गया तो बाद में फिर आप भूल जाते हो कि प्रीवियस लेक्चर में क्या हो रहा है. ठीक है, सो यू हैव टू मेंटेन दिस लिंक. इसलिए इन बिटवीन में आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, सारी चीज़ें दे रहा हूँ. एंड वन मोर थिंग, अगर आप रेगुलर लेक्चर्स अटेंड नहीं करते हो, ओके, जैसे ही फर्स्ट रिपोर्ट जनरेट होगा, दोज हु आर डिफॉल्टर स्टूडेंट्स, ओके, एंड इफ दे डोंट हैव एनी जेन्युइन रीजन फॉर दैट, या जो भी कोई एक्सप्लेनेशन अगर उनके पास नहीं होगा, आई विल रिमूव यू फ्रॉम दैट क्लासरूम. सो दैट बेनिफिट इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु अटेंडिंग ऑल द लेक्चर्स सिंसियरली एंड रेगुलरली. ठीक है, इसलिए जो भी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इट इज़ ओनली फॉर अ रेगुलर स्टूडेंट्स. दोज आर नॉट रेगुलर, इन दैट केस यू हैव टू प्रिपेयर एक्सटर्नली. आपको जो मटेरियल जहाँ से मिलता है आप कलेक्ट करो एंड यू कैन प्रिपेयर एंड यू विल गेट दोज मार्क्स. ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट ओनली रेगुलर स्टूडेंट्स विल गेट ऑल द बेनिफिट ऑफ दिस गूगल क्लासरूम. ओके, मैं रिकॉर्डिंग आपसे शेयर करूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लेक्चर बंक करने हैं, आप कभी भी सुन सकते हो, ऐसा नहीं होगा. अगर आप नहीं अटेंड करते हो देन मे बी यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट क्लासरूम, क्योंकि कंपलसरी नहीं है. ये मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. 1 by 1 आपको सारे एक ही क्लिक में सारा मटेरियल मिल जाएगा, उसके लिए मैं कर रहा हूँ. सो यू हैव टू अटेंड ईच एंड एवरी लेक्चर. ओके, नहीं समझ में आ रहा ना आपको, मैंने फर्स्ट डे को ही बोला, जो पार्ट नहीं समझ में आ रहा डायरेक्टली ना बोलना, मुझे उसमें 1% भी बुरा नहीं लगने वाला. ठीक है, मे बी देर आर सम क्वेश्चन जिसका मैं आंसर नहीं कर सकता हूँ, बट आई विल डेफिनेटली टेल यू ऑन अ नेक्स्ट डे. बट आई वॉन्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड कि सर ये कैसे हो रहा है, ये कैलकुलेशन आप फिर से एक्सप्लेन करो. आई वॉन्ट दैट अप्रोच फ्रॉम योर साइड. सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड. ओके, आई वॉन्ट एटलीस्ट सम इंट्रैक्शन. ओके, और जो जितना अभी मुझे दिखाई दे रहा है फ्रॉम द लास्ट 2-3 लेक्चर्स, ओके, अ फिक्स ग्रुप. ओके, 2-3 स्टूडेंट्स आर ओनली टॉकिंग, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर जस्ट मतलब एक चल रहा है उनके मोबाइल पे कहीं पे, तो वो चल रहा है. मे बी वो वहाँ पे है भी या नहीं मुझे पता नहीं. ओके, बट सी इसमें ना उस फैकल्टी का कोई लॉस है, इसमें लॉस आपका है, आपके पेमेंट का है, सब कुछ मतलब जो भी होगा उसका एप्लीकेशन वो आपको ही फेस करना है ना. सो प्लीज़ डोंट डू दैट. लेक्चर्स अटेंड करो, ट्राई टू मतलब अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, सो इन दैट केस आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. ओके, एट द एंड आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी आज के लेक्चर में हो रहा है वो आपको परफेक्ट समझ में आना चाहिए. नहीं आ रहा है तो ये आपका मतलब यू हैव दैट राइट्स. मैं आपको डायरेक्टली लीगली बोल रहा हूँ, यू हैव दैट राइट्स, यू कैन आस्क दोज डाउट्स डायरेक्टली टू द फैकल्टी. ओके, वो आपका रोल है. ओके, ऐसा नहीं कि फैकल्टी को डाउट्स नहीं पूछने, क्योंकि उसके लिए तो आपने पे किया है. ओके, सो आस्क योर डाउट्स. जो भी प्रॉब्लम आपको आते हैं आप इमीडिएटली पूछो कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. कितने बार भी पूछते हो तो भी मुझे कोई इशू नहीं है. बट आई डोंट वांट दिस मतलब ये ऐसे स्टूडेंट मुझे नहीं चाहिए कि जो पूरे लेक्चर्स में कहीं पे भी कुछ भी नहीं बोल रहे. ओके, इसका मतलब एक तो उनको सारा समझ में आ रहा है या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है, सो प्लीज़ टेक सम इनिशिएटिव. आपको जहाँ पे लग रहा है समझ में आ रहा है, ठीक है, उसके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. बट जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे बोलो, मैं एक और बार रिपीट कर दूंगा.
सी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, और ना ही मुझे समझ में आ रहा है कि कौन पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको टारगेट करूँगा, अरे बार बार पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सो प्लीज़ बी फ्री टू आस्क अ क्वेश्चन, ओके। सो या तो इसलिए मतलब कोई टॉपिक भी मैंने कंप्लीट किया है फिर भी आपको नहीं समझ में रहा, आप कभी भी पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि कॉम्प्लीमेंट्री मैंने कंप्लीट किया है तो बाद में आपको नहीं पूछना, सर का ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर हुआ था, मैं ये ऐसा अकेला हूँ जिसने अटेंड नहीं किया है। ठीक है ना, आप एटलीस्ट एक बार तो आप पूछ सकते हो कि सर कैन यू गिव मी ज क्विक आइडिया अबाउट दिस, ओके। बट ऐसा पूछो आप, तभी वो कंसेप्ट आपको क्लियर होगी, तभी आप सारे लेक्चर में मैच कर पाओगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तभी मैच होगी जब आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी वो इंटरेस्टिंग फील होगा। तो इसलिए आई एम गेटिंग आंसर फ्रॉम फ्यू स्टूडेंट्स बट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डाउट्स आपको आने वाले हर एक टॉपिक में, ठीक है। सो दिस रूट्स यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट ऑन अ कैलकुलेटर, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट अस go to the particular integral. Okay, so what is the particular integral? The formula for particular integral is 1 upon phi of d into your f of x, okay, which is equal to 1 upon d square plus 1 into f of x is sin x into sin 2x, ठीक है। तो आपको यहीं पे समझ में आना चाहिए। नाउ दिस फंक्शन sin x into sin 2x is a function of your shortcut method, okay। So to apply this shortcut method for this function, first of all we need to use this formula sin a into sin b. First use this formula and simplify this term sin x into sin 2x को पहले simplify करो। Let me show you directly here. So इस फंक्शन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। इट मीन्स यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए इंटू साइन बी? यस, 1/2 cos a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। ये माइनस एडजस्ट किया, आप चाहो तो माइनस बाहर लेके भी इसको रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। सो योर a इज x, b इज 2x, so cos of a minus b, x minus 2x is minus x, cos of a plus b is cos 3x, ठीक है। Now cos of minus x is cos x and 1/2 is the constant, so this can be written as 1 upon d square plus 1 cos x minus cos 3x, okay। और आपको मैंने पहले क्लियर किया कि this operator you can separate with respect to addition and with respect to subtraction. So with respect to this subtraction you can separate this operator, so it become 1 upon d square plus 1 of cos x minus 1 upon d square plus 1 of cos 3x, okay। Now tell me what is the simplification or what is the shortcut rule for this first case, first term में क्या करना होगा मुझे? d square को रिप्लेस करना होगा by what? -1 -1, हाँ -1 बिकॉज a इज 1, cos x में x का कोएफिशिएंट 1 है, तो d स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा माइनस a स्क्वायर, बट दैट बिकम -1। एंड सेकंड केस में अभी आपने करेक्ट बोला था, इन दैट -9, हाँ, सो इन दैट केस a इज 3, सो -3 स्क्वायर विच इज 9। सो इन फर्स्ट केस रिप्लेस d स्क्वायर बाय -1, सेकंड केस d स्क्वायर बाय -9, सो दैट गिव्स मी दिस, ठीक है। But what is the problem with this first term? When you replace a d square by -1, that denominator becomes 0. So it's a case of failure. To remove this case of failure, you have to multiply that yp by x, replace denominator by their derivative. क्योंकि यहाँ पे आप चेक करो प्रीवियस स्लाइड में d स्क्वायर प्लस 1 था, है ना, तो उसका डेरिवेटिव आएगा 2d एंड रिमेनिंग टर्म्स आर एज इट इज। सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो उसको डायरेक्टली सॉल्व करके मैंने लिखा, okay। Since it is a part of case of failure, so we have to remove this case of failure from this yp, so multiply by x, replace denominator by their derivative. Now again apply a shortcut method for this. So what is the value of 1 upon d into cos x? इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे? अभी हमें बस यही सॉल्व करना है, 1 upon d into cos x. How you solve this? integration हाँ, because 1 by d is the inverse of derivative. 1 by d is the inverse of derivative, inverse of the derivative is integration, ठीक है। सो cos x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है? sin x है। दिस इज वन वे, आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, एक ही लाइन में आ जाएगा। सेकंड वे क्या है? अगर आपको शॉर्टकट मेथड से ही जाना है, क्योंकि राइट साइड में cos x का फंक्शन है, cos x एंड sin x का फंक्शन अगर आता है तो वहाँ पे आपको कैसे भी करके d स्क्वायर को जनरेट करना है।
बिकॉज इन केस ऑफ कॉस साइन साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक जो भी रिजल्ट है दोज रिजल्ट्स आर ओनली फॉर डी स्क्वायर के लिए रिजल्ट है. सो एनी हाउ वी हैव टू जनरेट अ डी स्क्वायर इन दी फाई ऑफ डी. सो टू जनरेट दैट डी स्क्वायर आई विल मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय डी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डी, देन इट बिकम डी अपॉन डी स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स. ओके, तो अभी नाउ वी हैव दिस टू ऑपरेटर, वन इज डी एंड सेकंड इज वन अपॉन डी स्क्वायर. इसको दो ऑपरेटर में देखो, वन इज डी, सेकंड इज वन अपॉन डी स्क्वायर. इफ आई कीप दिस डी एज इट इज, वन अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? वन अपॉन डी स्क्वायर में डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस स्क्वायर माइनस वन. वेरी गुड. सो इट बिकम माइनस वन कॉस एक्स. करेक्ट. सो माइनस डी ऑफ कॉस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स. सो इट बिकम प्लस साइन एक्स. तो आप कैसे भी करो, इससे बस स्टेप्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट एट देन यू विल गेट द सेम वैल्यू. ओके, एंड इट्स अ फॉर्मूला इन जनरल मेथड. ये जनरल मेथड का ही फॉर्मूला है. वन बाई डी कॉस एक्स मीन्स इंटीग्रेशन. ठीक है, एंड जस्ट ऐड दिस वाई सी एंड वाई पी, दैट बिकम द फाइनल सोल्यूशन. ठीक है. सो या, सो दिस इज वन स्पेशल केस. यू कैन ट्राई एग्जाम्पल लाइक दिस ऑल्सो. आप खुद ये ड्रॉ करने की कोशिश करो. ऐसा भी, ये भी एक एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो. क्या करना होगा? कैन एनीवन टेल मी वाई पी डायरेक्टली? वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन साइन स्क्वायर एक्स. क्या करना होगा इस केस में? बोलो. यस, Sin x into sin x and limit use formula. साइन एक्स इंटू साइन एक्स एंड देन Formula. दैट इज नथिंग बट व्हाट? 1 minus cos 2 हाँ, तो वो जो कैसे भी करोगे वो सेम ही देगा आपको. दैट इज नथिंग बट वन माइनस व्हाट? cos 2x divided by 2. हाँ, बाई टू. देन नेक्स्ट क्या करना है? ये वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा. वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन. वन की वैल्यू क्या है? वन मीन्स ई रेस टू जीरो एक्स माइनस कॉस टू एक्स एज इट इज. दिस इज द फास्ट वे. ठीक है. नाउ सेपरेट करो. सो वन बाई टू एज इट इज वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन ई रेस टू जीरो एक्स माइनस वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन कॉस टू एक्स. अभी बोलो मुझे फाइनली क्या होगा आंसर? टेल मी द वैल्यू फॉर फर्स्ट. इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन वी रिप्लेस डी बाय व्हाट? e. Zero. है ना, ए ना, डी बाय ए. सो दैट गिव्स मी, डी के जगह पे जीरो लेना होगा. वन बाय वन इज वन, ई रेज टू जीरो इज वन. सो एट देन इट्स वन. करेक्ट है? Yes. ओके. नेक्स्ट इसमें डी स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा -4 से प्लस वन cos 2x. जस्ट 1 मिनट. हेलो. हाँ हाँ हाँ, अरे लेक्चर लाइक थोड़ा बात करता हूँ. हाँ ओके. देन नेक्स्ट. ओके, सो योर फाइनल आंसर इज 1/2 1 माइनस 1 प्लस 3 cos 2x. आप मल्टीप्लाई करके अंदर फाइनली लिख सकते हो जो भी आ रहा है. ओके, क्लियर हो रहा है सबको? एक और एग्जांपल मैंने दिया आपको. आप ऐसे कितने भी एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. साइन स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का. कॉस स्क्वायर एक्स आता है तो 1 प्लस cos 2x/2. ओके, एंड सेम लॉजिक से आपको सॉल्व करना है. ये सारे एग्जांपल आपको MCQs में आने वाले हैं. ठीक है. एंड ठीक है, वैसे ट्यूटोरियल में भी लेने वाले. ओके, नेक्स्ट इज साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन. सेम टॉपिक है, बस आप यहाँ पे डी स्क्वायर को प्लस ए स्क्वायर से रिप्लेस करने वाले हो. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल. नाउ आई विल नॉट रिपीट दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन. ओके, आई विल स्किप दिस. 0 to -2 distinct root. This become your complementary function. And now tell me yp. क्या लिखना है मुझे? yp बोलो. 1 upon, just tell me yp. Yes, d cube minus 4d 1 upon d cube minus 4d हाँ इंटू 2 cos हाइपरबोलिक 2x. ठीक है. ये मैं आपको इसलिए, क्योंकि आपको इस एग्जांपल से ये भी क्वेश्चन आने वाला है, द पर्टिकुलर इंटीग्रल इज. तो डायरेक्टली आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल पे जंप करना है ना, इन केस ऑफ MCQs.
Okay, so d cube minus 4d to cos hyperbolic 2x. So in case of cos hyperbolic function, we replace, बोलो बोलो क्या करना है आगे बोलो, ये कर लेते हैं, बोलो 2 is the constant that you can take outside, बोलो क्या रिप्लेस करना है, d square D को square रिप्लेस equals करना to है 4. minus 4 से. So what we have to write here, So plus 4. अरे सॉरी प्लस 4, वेरी सॉरी प्लस 4. हाँ, तो क्या लिखना है मुझे यहाँ पे बोलो, d क्यूब का जगह पे क्या लिखना है, 4D 4d minus 4d, that this become a case of failure. नहीं हो सकता ये पॉसिबल. तो मुझे क्या करना होगा, Multiply by x. Derivative. multiply this by x, replace the denominator by their derivative, minus this 4 as it is, cos hyperbolic 2x as it is. Now I will replace again d square by plus 4, so that gives me x multiplied by 1 upon is 12, 12 minus 4 is 8. 8 into cos hyperbolic 2x. This is your final answer, x by 8 cos hyperbolic 2x. ठीक है, Will do multiplication. it is there in slide. X by 4 cos hyperbolic 2x. ठीक है. हाँ, now my next question is this. How you solve this? Solve सेम ही रखता हूँ मैं इसमें, ये कुछ भी आ सकता है, इस पर डिपेंड नहीं है. डी स्क्वायर प्लस 1 साइन हाइपरबोलिक 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2x. आप कैसे करोगे, मुझे आपसे हिंट चाहिए. यू टेल मी हाउ यू सॉल्व दिस. बोलो, यही केस है जो नोट में दिया वो यही केस है. हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. कैन वी अप्लाई हियर शॉर्टकट मेथड? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. कैन वी अप्लाई हियर शॉर्टकट मेथड? Yes. कैसे Yes. करोगे बोलो. तो yp जो होगा वो ये होगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 साइन हाइपरबोलिक 2x कॉस हाइपरबोलिक 2x. टेल मी हाउ यू डू दिस. बोलो, बिकॉज राइट नाउ दिस फंक्शन इज नॉट देयर इन योर शॉर्टकट मेथड. ऐसा प्रोडक्ट का फंक्शन नहीं है. अगर सिंगल साइन हाइपरबोलिक x होता तो आपके पास रिजल्ट है. नाउ दिस फंक्शन आर इन प्रोडक्ट, सो वी डोंट हैव एनी रिजल्ट. सो हाउ यू डू दिस, कैसे करोगे आप इसको, बोलो. Multiply and divide by 2. ओके, देन Then its formula becomes sin hyperbolic 2x. ओके, बट मैंने आपको साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला दिया है क्या? साइन 2x का आपके पास फॉर्मूला है, क्या है वो? 2 sin x cos x. 2 sin x cos x. ओके, व्हाट इज ये डायरेक्टली एज इट इज चेंज नहीं होता सारे फॉर्मूलेज. अभी यहाँ पे आपने जो बोला है वो करेक्ट है, बट उसके लिए मुझे फिर आपको सारे फॉर्मूलेज देने होंगे. सो आई डोंट वांट दैट अप्रोच. यू आर करेक्ट, ओके, बट आई डोंट वांट दैट अप्रोच. मैंने क्योंकि आपको बस क्या दिया है, सो अगेन इट डिपेंड ऑन यू. अगर आपको फॉर्मूले से करना तो आप उससे करो, बट जितना मुझे पता है मैंने आपको हाइपरबोलिक में बस इतना ही दिया है. ये साइन हाइपरबोलिक एक्स की डेफिनेशन, सॉरी यहाँ पे माइनस है, बट अगर आपको पता है ना यू कैन गो विद दिस. आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट, बट मैं ऐसे एज्यूम करके जा रहा हूँ बिकॉज यू डोंट हैव एनी बेस्ड नॉलेज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन. सो कॉस हाइपरबोलिक एक्स की ये एक डेफिनेशन दी है मैंने. फिर उसके बाद मैंने डायरेक्टली आपको क्या दिया है, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस टू फंक्शन. तो ऐसे केसेस में यू कैन गो विद दिस आल्सो, ओके. आई डोंट, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे जल्दी हो जाएगा. बट इफ़ यू डोंट नो द डेफिनेशन और दिस फॉर्मूलेज, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक है, अगर कॉस हाइपरबोलिक, हाँ आपका फिर वो चेंज होगा ना. यू टेल मी इन दिस केस. चलो क्वेश्चन ही चेंज करता हूँ, इतना एक्सप्लेनेशन देने से अच्छा. व्हाट अबाउट दिस कॉस हाइपरबोलिक एक्स. तो आपको एक तो फॉर्मूला देखना होगा हाइपरबोलिक में, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल. ठीक है, यू कैन डायरेक्टली गो विद दैट फॉर्मूला. या आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं रखने कोई भी, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप ये साइन हाइपरबोलिक एंड कॉस हाइपरबोलिक को रिप्लेस कर सकते हो बाय दी डेफिनेशन. तो सारी चीज़ें आपको आपकी एक्सपोनेंशियल में आ जाएगी. एंड एक्सपोनेंशियल के केस में रिजल्ट सिंपल है, डी को रिप्लेस करो ए से. सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, क्या करना होगा इस केस में, अगर मैं दोनों कॉस हाइपरबोलिक लेता हूँ. टेल मी द सिंप्लीफिकेशन.
एक वे आपके पास है, आप कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी का फॉर्मूला देखो एंड यू कैन गो विद दैट। ठीक है, अगर आपको उससे नहीं जाना है तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, सो 1/d² + 1 कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला है e⁻x प्लस e⁻−x/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला है e⁻2x प्लस e⁻²x/2। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, दैट बिकम ये 1/4 बाहर आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, टेल मी डायरेक्टली, e⁻3x देन e⁻3x देन e⁻−x, यही है क्या, आप चेक करो, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, नहीं 0, ओके नहीं ये ऐड होगा ना, हाँ e⁻−x, ठीक है, देन प्लस e⁻+x एंड देन e⁻−3x, -3x, ऐसा आपको मिल जाएगा। 1 बाय 1 सेपरेट करो। फर्स्ट केस में d के जगह पे 3 रखो, सेकंड केस में d के जगह पे -1 रखो, थर्ड केस में d के जगह पे +1 रखो, फोर्थ केस में d के जगह पे -3 रखो, हो गया। तो इस केस में आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कॉस हाइपरबोलिक a इंटू कॉस हाइपरबोलिक b। सो इट डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सा अप्रोच से जाना है। ठीक है, तो वही आपका नेक्स्ट रिमार्क था। इज दिस क्लियर? अप्रोच क्लियर हो गया सबको? ये समझ में आ रहा है Yes. क्या फिर से एक्सप्लेन करना है अदर स्टूडेंट? ओके, ठीक है। तो वही दिया है मैंने। अब मतलब इस रिमार्क का मीनिंग ही वही था, इंस्टेड ऑफ मतलब वो फॉर्मूले याद रखने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली डेफिनेशन से रिप्लेस करो, जो भी आ रहा है मल्टीप्लिकेशन करो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का रिजल्ट ऑलरेडी ट्रिवियल है, डी के जगह पे बस ए रखना है। ठीक है, रिप्लेस करके आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, हाँ, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको। आई ऑलरेडी शेयर दिस पीपीटी, सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। सो प्रिपेयर अ सेपरेट नोटबुक फॉर दिस सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में। एक काम करो, आप एक सेपरेट नोटबुक रखो, तो ट्यूटोरियल का या थ्योरी का जो भी पार्ट आता है वो एक नोटबुक में भी आप मेंटेन करते हो तो भी चलेगा। ठीक है, बेसिकली फॉर ट्यूटोरियल विल प्रोवाइड यू वर्कशीट जिसमें आपको वो सारा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो इसलिए कोई सेपरेट नोटबुक की उतनी ज़रूरत नहीं है, बट दैट इज़ फॉर थियरी, फॉर टू सॉल्व दिस होमवर्क एग्जाम्पल्स यू प्लीज़ मेक अ सेपरेट नोटबुक। ठीक है, एक नोटबुक करो आप और उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखो। जो भी डाउट्स आता है यू कैन इमीडिएटली आस्क मी इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, एंड आई विल चेक दिस इन योर ट्यूटोरियल सेशन। ठीक है, ट्यूटोरियल सेशन में क्योंकि 22 या 20 स्टूडेंट तो 1 बाय 1 में चेक कर सकते हो कि कितने स्टूडेंट ने कितना कंप्लीट किया। ठीक है, सो दिस PDF इज ऑलरेडी अवेलेबल विद यू, सो ट्राई टू कंप्लीट दिस 3 क्वेश्चंस। ओके, yeah, so this is all about this first few cases. Now let me start the next case, which is the polynomial function. Okay, means a function of this type, or function in the form of polynomial, a0, a1x, a2x², a3x cube, like this. Okay, so what are the steps to find the particular integral इन केस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन? ठीक है, तो दिस इज योर फाई ऑफ डी। अभी क्या होगा चेंज, मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स आने वाले, मैं आपको बस दिखाता हूँ क्या कैसे दिखाई देगा वो शो करता हूँ। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले x² + 1। ठीक है, सो इसका सोल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है। सो स्टेप 1 क्या है, इन दिस केस कन्वर्ट फाई ऑफ डी, ये नीचे का पार्ट, दिस इज योर फाई ऑफ डी, कन्वर्ट फाई ऑफ डी इन टर्म्स ऑफ 1 + सम गैमा ऑफ डी by taking the lowest degree term common from the phi of d. Okay, for example, इसका मतलब क्या आप मुझे एक्सप्लेन करो। d³ + 2d² + 7, बोलो क्या करना है मुझे। दिस इज 1/phi of d इंटू f of x। हाँ, बोलो क्या करना है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, यू रेड एंड टेल मी, मुझे इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन करना है। कन्वर्ट दिस phi of d in terms of 1 + something by taking the lowest degree term common। बोलो 1 + something, इसका मतलब 1 + something, 1 + gamma। yes, tell me।
यस, एनीवन? ओके, मुझे ये बोलो इसमें से लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सा है? डी क्यूब 2d स्क्वायर प्लस 7, इसमें से लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सा है? हाँ, एनीवन? विच इज योर लोवेस्ट डिग्री टर्म? d पावर 0. हाँ, फर्स्ट टर्म की डिग्री क्या है? 3 है. ओके, सेकंड टर्म की डिग्री क्या है? 2 है. 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री क्या आती है? 0, बिकॉज इट इज d रेज टू 0. सो योर लोवेस्ट डिग्री टर्म इज 7. तो आपको क्या करना है? लोवेस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेना है, मीन्स 1/7 बाहर आने वाला है ना. एंड व्हाट इज इन द ब्रैकेट? जो पार्ट आप कॉमन लेते हो उसके जगह पे हमेशा 1 आने वाला है प्लस समथिंग, मतलब क्या है, जो भी रिमेनिंग है वो क्या रहेगा वहाँ पे? टी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर बाय 7. दिस इज योर गैमा ऑफ डी. ये पहला सिंप्लीफिकेशन. इज दिस क्लियर नाउ? इन एवरी केस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ लोवेस्ट डिग्री टर्म कॉमन, देन यू विल गेट 1 प्लस समथिंग इन द डिनोमिनेटर, फिर आगे आपको सॉल्व करना है. यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? Yes. Now in next step, okay, तो यहाँ पे आपको है ना ये जो phi of d दिखाई दे रहा है, it look like this 1 प्लस एक्स जैसे दिखाई दे रहा है, 1/1 प्लस एक्स, या अगर यहाँ पे माइनस साइन आता है सो 1/1 माइनस एक्स. तो यहाँ पे जो ये फंक्शन या जो ऑपरेटर आपको दिखाई दे रहा है, इट इज ऑफ द टाइप 1/1 प्लस एक्स और 1/1 माइनस एक्स. तो आप देखो उसके लिए क्या करना है, दैट इज योर सेकेंड स्टेप. Okay, so for this part 1/1 plus x or 1/1 minus x, we have these two result. This is a part of your infinite series, I think, which is not there in your syllabus. Okay, but ये result आपको infinite series से मिल जाते हैं. This is so this series 1/1 plus x is exactly equal to 1 minus x plus x square minus x cube and so on. And 1/1 minus x is equal to 1 plus x square plus x cube and so on. तो ये result आपको use करना है एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल. इतना याद रखो. अभी मैं प्रॉपर एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. इन केस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द phi of d you have to identify our lowest degree term, take that lowest degree term common, then your denominator become 1 plus something. ठीक है, सो एट द एंड नाउ योर ऑपरेटर बिकम 1/1 प्लस एक्स और 1/1 माइनस एक्स. इस फॉर्म में वो ऑपरेटर आपका जाने वाला है. एंड जस्ट यूज दिस रिजल्ट इन केस ऑफ 1 प्लस एक्स. अल्टरनेटिवली प्लस एंड माइनस साइन है, 1 माइनस एक्स में सारे प्लस साइन है. 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर इंक्रीज करते जाना. ठीक है, अभी यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे ये जो सीरीज कंसिडर करने वाला हूँ मैं, इन्फाइनाइट सीरीज, या आपको कौन से डिग्री तक कंसिडर करने, मतलब कहाँ पे आपको स्टॉप करना है, वेयर टू स्टॉप. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि इसमें इन्फाइनाइट टर्म्स है तो यू कैनॉट कंसिडर इन्फाइनाइटली मेनी टर्म्स टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन. तो ये टर्म्स आपको कहाँ तक कंसिडर करने, दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर टू स्टॉप दिस सीरीज. ठीक है, सो दैट आई विल डायरेक्टली आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन. ओके, लेट मी टेक वन क्वेश्चन. So again I will skip this complementary function. Roots are 1 plus or minus I. So your complementary function is e raised to x c1 cos 2x plus c2 sin 2x. And now let us consider the particular integral. Okay. यहाँ इसके आगे हमें करना है. So first of all you can see on RHS here you will have a polynomial function. ये polynomial function है. आप बोलोगे सर इसमें एक ही टर्म है, आगे के केस में 2 टर्म मिलने वाले हैं. अभी यहाँ पे सारे जीरो ही है, नेक्स्ट केस में आपको मैं दिखाता हूँ तो एक से ज़्यादा टर्म्स में लेने वाला. सो दिस इज अ सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन, करेक्ट, 25x स्क्वायर. एंड आपको ये वाई पी सॉल्व करना है. ओके, टेल मी द फर्स्ट स्टेप. बोलो, आप बोलो, मैं लिखते जाऊँगा. 5 into common. या हाँ, सॉरी कैन यू रिपीट. क्या कॉमन लेना है, क्या करना है पहले? 1/5. ओके, उससे पहले मैं कांस्टेंट को बाहर निकालता हूँ तो वो कन्फ्यूजन नहीं होगा. So d square minus 2d plus 5. So we have this now. Okay. So which is your lowest degree term? 5 है, तो आपको 5 को कॉमन लेना है. Then it become 25/5. In bracket you will get 1/5 के जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस क्या लिखना है बोलो? d square minus 5d by 5. ठीक है, into this x square as it is.
दिस इज योर स्टेप वन में यहाँ तक ही था, 1/1 प्लस एक्स में कन्वर्ट करना है। एंड नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ 1/1 प्लस एक्स, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है, यहाँ मैं ऑलरेडी स्लाइड में दे दिया है। सो दैट इज़ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो, ठीक है। हाँ minus x. सॉरी, हाँ माइनस एक्स, डू दैट करेक्शन। नाउ यू टेल मी हाउ वी डिसाइड द ऑर्डर ऑफ दिस x। इस क्वेश्चन में आपका x क्या है? इन दिस केस व्हाट इज आवर x? d square minus 2d by 5. डी स्क्वायर माइनस 2d बाय 5। अभी आप मुझे बोलो, ओके, लॉजिक से या आपको क्या क्लिक हो रहा है? डी मीन्स डेरिवेटिव, इतना याद रखो, ठीक है। अभी आप मुझे बोलो कि मुझे कहाँ तक ये सीक्वेंस रन करनी है, एंड टेल मी योर रीजन। Till x. एक्स स्क्वायर तक, वाई? X. आप कोशिश करो मुझे, ओके, आप उसके क्लोज हो आंसर से, बट आप कोशिश करो कि क्या, वाई वी हैव टू स्टॉप अप टू एक्स स्क्वायर, वाई वी हैव टू स्टॉप अप टू एक्स, जो भी आपका रीजन है आप मुझे बोलो। And Because we want d square. हाँ, नहीं, पर ठीक है, मैं इस टर्म से जाता हूँ डायरेक्टली, हाईएस्ट डिग्री से जाता हूँ। व्हेन आई कंसिडर एक्स क्यूब, इसका क्यूब होगा, इसका क्यूब होगा, मतलब यहाँ पे लोवेस्ट डिग्री टर्म डी क्यूब आने वाला है, करेक्ट है ना? इसके क्यूब में लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या आने वाला है? डी क्यूब आने वाला है ना। ये ए प्लस ए माइनस बी होल क्यूब आपको पता ही है, 2d का क्यूब में डी क्यूब जनरेट होने वाला है। डी क्यूब मतलब क्या होता है? डी क्यूब थर्ड डेरिवेटिव, करेक्ट है। डी क्यूब मतलब क्या होता है? थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? थर्ड डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? थर्ड डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं इसको और डिफरेंट वे से एक्सप्लेन करता हूँ, इससे एक स्टेप से हो जाती है अगर आपको समझ में आता तो। चलो जाने दो, ठीक है। हाँ, नाउ आई विल गिव यू अ सिंपल रीजन। ओके, दिस x इज एक्चुअली डेरिवेटिव। ये x क्या है आपका? यहाँ पे ये फैक्टर क्या डेरिवेटिव है ना, वो इट इज़ नॉट 1/d, इट इज़ अ डेरिवेटिव। सारे केसेस में x आपका डेरिवेटिव आने वाला है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, बट इट्स अ डेरिवेटिव। ओके, पहला स्टेटमेंट मेरा क्या था? x यहाँ पे डेरिवेटिव है। आप इस x को, इफ आई राइट दिस सीक्वेंस, ठीक है, चलो लिखने से, हाँ, आप इस x को, ये एक्सपांशन होगा, एंड आप इसको किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने वाले हो, करेक्ट है। 1/1 प्लस एक्स को आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने हो। इट मीन्स आप इस x को, कैपिटल X को आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने वाले हो। इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आने वाला है, करेक्ट है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ, अभी आप मुझे ये बोलो, Yes, sir. हाँ, x मतलब क्या है? डेरिवेटिव। आप इस x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने वाले हो। एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, कैन आई से दिस? कैपिटल X इंटू एक्स स्क्वायर, इट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूँ ना? प्लीज म्यूट योरसेल्फ, किसी का तो माइक, हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये जो x है इसमें डेरिवेटिव टर्म्स है, तो x को मैं डेरिवेटिव जैसे ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। 1/1 प्लस एक्स का अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो मुझे ये कैसे दिखाई देगा? 25/5, 1 माइनस एक्स, एक्स इज दिस, डी स्क्वायर माइनस 2d बाई 5 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स डी स्क्वायर माइनस 2d बाई 5 स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब मीन्स डी स्क्वायर माइनस 2d बाई 5 क्यूब एंड सो ऑन। और मल्टीप्लाई किससे करने वाला हूँ? एक्स स्क्वायर से करने वाला। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? हर एक x को मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। एक्स स्क्वायर इज व्हाट? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज व्हाट? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। और जब मैं x पे ऑपरेट करता हूँ, इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? अभी अंदर छोड़ो, राइट, ऐसे एज्यूम करो कि वी डोंट नो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, एक्स की वैल्यू आपको नहीं पता है, बट जब आप कैपिटल X पे एक्स स्क्वायर ऑपरेट करते हो, वेदर दैट टेल्स यू, इन दैट केस वी हैव टू कंसीडर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। कहीं पे ना कहीं पे तो फर्स्ट डेरिवेटिव आने वाला है, उससे ज़्यादा ही होगा, फर्स्ट से ज़्यादा ही होगा, बट मिनिमम में बोल रहा हूँ। सो कैन वी से दैट x ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? ऐसा रफली बोल सकते हैं क्या हम?
यस और नो? Yes. बोल सकते हैं ना एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स, इसका सिंपल लॉजिक वही है कि एक्स मतलब डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 1 है ना, तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डी क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे हम रफली बोल सकते हैं ना वहाँ पे, जस्ट टू सिलेक्ट, जस्ट टू चेक द टर्म्स इन द इनफाइनाइट सीरीज। ओके हाँ, अभी आप मुझे ये बोलो, अगर मैं एक्स क्यूब कंसिडर करता हूँ, ओके एक्स क्यूब कंसिडर करता हूँ, उसका एक रफली मीनिंग होता है थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। सो थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आने वाला है? 0. 0 आने वाला है। तो अगर आप x को किसी भी डेरिवेटिव से अंदर रिप्लेस करते हो, ओके उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? आप इसके अंदर कुछ भी लिखो, कोई भी डेरिवेटिव, कुछ भी लिखो मतलब डेरिवेटिव लिखो, वो d लिखो, x की वैल्यू d कंसिडर करो, x की वैल्यू d+1 करो, d² + 1 करो, d³ - 1 करो, कुछ भी डेरिवेटिव फॉर्म में कुछ भी वैल्यू कंसिडर करो, हमेशा उसका आंसर 0 आने वाला है बिकॉज ऑफ दिस क्यूब। क्यूब मतलब थर्ड डेरिवेटिव 0 है, तो उसके आगे जितने भी डेरिवेटिव आने वाले वो सारे 0 ही आने वाले, ठीक है। तो ये कंसिडर करने की जरूरत है क्या? एक्स क्यूब कंसिडर करने की जरूरत है क्या? नहीं है, तो आपको डायरेक्टली डिलीट करना है। नाउ कम टू एक्स स्क्वायर कंसिडर करना है क्या? Yes. हाँ, एक्स स्क्वायर मतलब सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, इट मींस वी हैव टू कंसिडर द एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि उसमें चांसेस है आपको ऐसे कुछ टर्म्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको नॉन जीरो डेरिवेटिव मिलेगा, ओके। तो इसलिए कंसिडर अ सीरीज अप टू डिग्री 2, सॉरी, और मैंने उसके लिए एक डायरेक्ट रिजल्ट आपको दे दिया है जो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। हाँ, तो वो ओके, सारा जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो यहीं पे, नाउ आई विल शो यू द रिजल्ट, एग्जैक्ट रिजल्ट, इसका सिंपल मीनिंग क्या, ठीक है, नहीं होगा शायद आगे। हाँ, तो आप यहीं पे याद रखो, इफ़ योर पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री n, इफ़ योर पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री n, कंसिडर एक्सपांशन अप टू n ओनली। अगर नहीं समझ में आ रहा तो दिस इज द ओनली वे। अगर आपके पास डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है तो आपको डिग्री 2 तक ही कैलकुलेशन कंसिडर करना है, अगर डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है तो डिग्री 3 तक कैलकुलेशन कंसिडर करना है, डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है तो डिग्री 4 तक कैलकुलेशन कंसिडर करना है। अभी उसके आगे भी सिंप्लीफिकेशन होने वाला है, ओके। सो सिंस हियर वी हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल है, इसलिए मैं सेकंड डिग्री तक ही कंसिडर कर रहा हूँ एक्सपांशन, ओके। ये इस स्टेप तक क्लियर है सबको? यस, नाउ नेक्स्ट क्या करना है हमें? अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इट इज सिंपली a - b होल स्क्वायर, इट इज सिंपली a - b, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 1 माइनस, यहाँ पे 1/5 में बाहर लेता हूँ, लेट मी शो यू प्रॉपरली, 1/5 में बाहर लेता हूँ, स्क्वायर में से 5 स्क्वायर बाहर लेता हूँ, सो यू विल गेट दिस। अभी इसमें तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, ये a - b होल स्क्वायर है, तो इसको पहले मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, बाकी चीज़ें एज इट इज़, बाकी कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। 1 - 1/5, उसके अंदर क्या है, d स्क्वायर माइनस 2d, फिर 25 d स्क्वायर, इसको मैंने सॉल्व किया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ यू टेल मी कौन कौन से टर्म्स इसमें से मैं कैंसिल कर सकता हूँ? एज अवर पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2 ओनली, तो क्या होगा, डेरिवेटिव कौन से केस में 0 आने वाला है? डेरिवेटिव डिग्री 3 ऑनवर्ड्स, है ना? Yes. अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है ना, तो सारे डेरिवेटिव्स जिनकी ऑर्डर ग्रेटर देन 2 आ रही है वो सारे 0 आने वाले हैं, आप यह याद रखो, ओके। इफ यू हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ओनली अप टू nth ऑर्डर सारे डेरिवेटिव्स नॉन जीरो आने वाले, n+1 ऑर्डर के सारे डेरिवेटिव या इसके आगे जितने भी सारे हैं वो सारे 0 आने वाले, ये आपको रिजल्ट पता होगा, ठीक है। सो सिंस अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2, सो 2 के आगे जितने भी डेरिवेटिव्स है सारे आपको कैंसिल करने हैं। क्यों कैंसिल करने? क्योंकि उनका आंसर वैसे भी 0 आने वाला है, तो लिख के आप अपने पास टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो ये सारे टर्म्स आपके डिलीट हो जाएंगे, वही रिजल्ट मैंने दिया है। सिंस अ गिवन पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2, सो ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड अबोव आर 0। 2 के आगे जितने भी डेरिवेटिव्स है सारे वो 0 आने वाले हैं। सो इफ आई डिलीट दिस, विल गेट दिस, इनको डिलीट करके मुझे फाइनली क्या मिलेगा, 1 माइनस d² प्लस ये 5 से डिवाइड करके 2d/5, यहाँ पे एक ही टर्म रहेगा 4d² और क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, इन दोनों की एडिशन हो सकती है, डू दैट, ठीक है।
डू दैट. सो यू विल गेट 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 25 2d बाई 5. अभी आप अंदर मल्टीप्लाई करो. ठीक है, बोलो मुझे क्या लिखना होगा नेक्स्ट स्टेप में, यू टेल मी. बोलो 1 को मल्टीप्लाई किया तो 25x स्क्वायर. नेक्स्ट क्या लिखना है बोलो. 25 कैंसिल होगा. Two by 25. डी स्क्वायर ऑफ एक्स 2 स्क्वायर by मीन्स 25. Double derivative of 25x square. हाँ. सो विच व्हाट इज दैट. आप पहले क्या 2 by 25. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते टाइम ही है ना, ये 25 कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास अभी Two. डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है. डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर मीन्स सेकंड डेरिवेटिव ना. एक्स स्क्वायर का पहला डेरिवेटिव क्या है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स By पहला 6. डेरिवेटिव है ना. डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स सेकंड डेरिवेटिव विच इज 2. करेक्ट है ये 2 लिखना. Yes. नेक्स्ट क्या है 2 बाई 5 ऑफ 25x स्क्वायर. 20. 5 कैंसिल होगा, यू विल गेट 10. कांस्टेंट का कैलकुलेशन पहले कर रहा हूँ. एंड डी ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स 2x. ठीक है. सो एट देन यू विल गेट दिस. मैंने शायद लिखा होगा, हाँ मैंने सेपरेट किया. 25 से पहले अंदर मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन शो किया मैंने, और फिर ये 25x स्क्वायर ये क्या होगा एट देन ये 1/25 है. ये 50 करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये डायरेक्टली कैंसिल होकर भी लिख सकते थे आप. यहाँ पे भी 20 आ रहा है. एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है. अभी क्या करते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको प्रॉपर सॉल्व करके देता हूँ. हाँ ये सॉल्व करते मे बी देन विल स्टॉप. ओके. कॉम्प्लीमेंट्री का मैं स्किप कर रहा हूँ. सिंस ऑन आर एच एस वी हैव पॉलिनोमियल फंक्शन, तो आपको शॉर्टकट मेथड से जाना है. शॉर्टकट मेथड से जाने के लिए कंसिडर वाई पी. अभी जिनको नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्लियर होना चाहिए. टेल मी वाई पी क्विकली बोलते जाओ आप. D square minus D plus 1. वेरी गुड. डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. एक टाइम पे पूरे कंसिडर करो, सेपरेट करने की जरूरत नहीं है पॉलिनोमियल के केस में. ओके. हाँ तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी, इसको कैसे लिखना है, 1/1 प्लस एक्स के फॉर्म में लिखना है ना. मतलब लोवेस्ट डिग्री कॉमन लेके. बट यहाँ पे लोवेस्ट डिग्री टर्म ही 1 है, तो उसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा ना. 1 कॉमन लेके 1 ही मिलेगा ना. सो देयर इज नो सिंप्लीफिकेशन. सो दिस कैन बी रिटन एज 1/1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी. यहाँ तक समझ में आ गया सबको. मैं क्या करता हूँ स्टेप 1 में, 5 ऑफ डी से लोवेस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेता हूँ और मैं उसको किस में कन्वर्ट करता हूँ, 1/1 प्लस एक्स में कन्वर्ट करता हूँ. अगर मेरे पास डायरेक्टली 1/1 प्लस एक्स अवेलेबल है तो करने की जरूरत है क्या, नो ना. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. एट देन मुझे इस टर्म को 1/1 प्लस एक्स में कन्वर्ट करना है. क्यों करना है, क्योंकि मुझे मेरे पास इसका एक्सपांशन है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन. ठीक है. सो ये ऑलरेडी उस फॉर्म में था, 1/1 प्लस एक्स फॉर्म में था, तो मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है. नहीं होता, अगर यहाँ पे 10 होता तो मुझे क्या करना होगा, इफ 10 इज देयर तो मुझे क्या करना होगा, 10 को 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी बाई 10 आ जाता. ठीक है. सो इतना ही चेंज होगा. ओके. नाउ लेट्स डू फर्दर. बाकी ये पार्ट एज इट इज. अभी नाउ इट लुक लाइक 1/1 प्लस एक्स, तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है. अभी मुझे पहले ये बोलो कि अप टू विच डिग्री वी हैव टू कंसिडर दिस फॉर्मूला. डिग्री 3 है तो डिग्री 3 तक ही कंसिडर करो. सो 1 माइनस एक्स, एक्स मतलब ये, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. आगे के टर्म्स में स्किप कर रहा हूँ, या आप डायरेक्टली डिलीट ही कर दो, जरूरत नहीं है उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है. इतना ही कंसिडर करो. डॉट डॉट भी नहीं दे रहा हो तो भी अच्छा होता. ठीक है. हाँ इनटू पॉलिनोमियल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. हाँ अभी पहले क्या करो, आप ये टर्म सिंप्लीफाई करो अंदर के सारे, फिर उसके बाद करते हैं. 1 माइनस ये क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस डी. Now perform here a minus b whole square. What is your a minus b whole square? Tell me quickly. A square. D to the power 4 minus 4d square cube plus 2 plus d square है ना. d square. हाँ. क्यूब क्या होगा, क्यूब बोल दो. It will be minus. d to the power 6 हाँ minus d to the power cube minus 3 a square b ना. a square b means what? Sir, cube term will be minus.
कहाँ पे? Like the formula. It will be minus x d square minus d का whole cube. हाँ हाँ हाँ, सॉरी, थैंक यू फॉर दिस करेक्शन. दिस इज माइनस. हाँ, प्लीज चेक योर साइन, ऐसे मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन आप चेक करते रहो. हाँ, मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ तो अच्छा होगा आपके लिए. हाँ हाँ, नाउ यू टेल मी दिस क्यूब. हाँ, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी. व्हाट इज योर a स्क्वायर बी? a स्क्वायर D बी. cube. हाँ, a स्क्वायर मतलब d रेज टू 4 इंटू बी मतलब d रेज टू 5. करेक्ट लिखा है मैंने ये. प्लस 3ab स्क्वायर, क्या लिखना होगा? 3ab स्क्वायर. b स्क्वायर मतलब d स्क्वायर इंटू d स्क्वायर बिकम d रेज टू D to the power 4. करेक्ट. प्लस सॉरी माइनस है ना, D to the power 3. 3 हो गया इंटू दिस पार्ट एज इट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1. नाउ अगेन वी हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. तो डिग्री 3 या ऑर्डर 3 के आगे जितने भी डेरिवेटिव्स है सारे आपको कैंसिल करने हैं क्योंकि उनकी वैल्यू 0 आने वाली है. सिंस वी हैव पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, सो ऑर्डर 3 के आगे जितने भी डेरिवेटिव्स है सारे आपको कैंसिल करने हैं. तो क्या क्या कैंसिल होगा? टेल मी वन बाय वन. d रेज टू 4 लेना है D क्या? raised to 4. नहीं लेना है. 3 के आगे ये लेना है, ये भी लेना Yes. है, ये 3 के आगे, ये 3 के आगे, ये 3 के आगे, और जितना भी रिमेनिंग है लिखो. दैट इज योर फाइनल आंसर. सो यह मतलब फाइनल सिंप्लीफिकेशन. 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस डी, यहाँ पे क्या रह गया है? माइनस 4d क्यूब प्लस डी स्क्वायर. यहाँ पे क्या रह गया? प्लस डी क्यूब ना. So, करेक्ट. हाँ so in fourth term it should be minus 2d cube, no? यहाँ पे Yes. माइनस ही है ना फिर. हाँ 2D क्यूब बना चाहिए. साइन ना, साइन. यहाँ पे 2 नहीं था ना, सो व्हाई आई हैव टेकन दिस, आई डोंट नो. ओके हाँ, माइनस 2ab, माइनस 2ab. ओके या, एंड प्लस डी क्यूब एंड दिस फॉर्मूला इज एज इट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1. अभी चेक करो कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है तो बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप मुझे बोल दो. यू प्लीज चेक, आपके स्क्रीन के सामने ही है. कहाँ जहाँ पे भी मिस्टेक लिख रहे हैं आप मुझे बोल दो. इज इट करेक्ट नाउ? चेक वंस अगेन एंड टेल मी. Yes. हाँ ओके. Yes, sir. हाँ ठीक है. अगर रॉन्ग आता तो हमें वैसे समझ में आ जाएगा. ऑलरेडी वी हैव दैट आंसर है मेरे पास. हाँ, अभी यहाँ पे माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है. और क्या कैंसिल हो रहा है? ये डी क्यूब माइनस डी क्यूब. तो मैं यहाँ पे कॉर्नर में करता हूँ अभी आगे का कैलकुलेशन. हाँ, सो फाइनली वाई पी इज इक्वल टू ब्रैकेट में आपको मिल रहा है 1 प्लस डी, ओके, प्लस डी क्यूब, ओके करेक्ट है. हाँ, इनटू दिस Minus माइनस डी क्यूब से. सर माइनस D क्यूब. ये माइनस साइन था ना, ये माइनस साइन और इसका एक माइनस साइन प्लस होगा ना. -2 plus 1. करेक्ट है कि नहीं? So it is square minus bracket. क्या क्या हुआ? सर ब्रैकेट में माइनस -2 D क्यूब प्लस D क्यूब. -2 D क्यूब अरे प्लस D. वो देखा ही नहीं, फिर से वही मिस्टेक. चलो ओके ठीक है. हाँ, नाउ मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट. एक बार मिस्टेक हो गई ना वो कंटिन्यू ही रहती है. 3x स्क्वायर प्लस 1. टेल मी डेरिवेटिव क्विकली, ज़्यादा टाइम हो गया इसमें. डी ऑफ दिस सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस. 3x square minus 3x 6x. square minus 3x 6x. स्क्वायर माइनस 6x, ओके, माइनस थर्ड डेरिवेटिव ऑफ दिस. वो 6. हाँ, इसका 3 फैक्टोरियल होता है विच इज 6. ठीक है. एंड प्लीज डू दिस सिंप्लीफिकेशन. ये प्लस 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो भी रिमेनिंग है उसका सिंप्लीफिकेशन करो, यू विल गेट द फाइनल आंसर. तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मैंने अच्छे से नहीं लिखा था वो. सो या इट इज
हाँ, ये जो भी आपको मैं बोल रहा था, आपको कैलकुलेशन करना है, आगे के टर्म्स आपको डिलीट करने हैं, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशन यू विल गेट 1 प्लस डी माइनस, ओके यहाँ तक करेक्ट मैच हो रहा था, 1 प्लस डी माइनस डी क्यूब, 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करो, डी मीन्स दी फर्स्ट डेरिवेटिव, डी क्यूब मीन्स दी थर्ड डेरिवेटिव, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। डू दिस सिंप्लीफिकेशन, योर वाई पी इज दिस, ये आपका फाइनल आंसर है, एक्स क्यूब माइनस 6x माइनस 5। सिंपल है, ओके, बट आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करते जाते हो कैलकुलेशन तो वो हो जाएगा। बट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है ना अच्छे से, तो आप डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हो, ओके। अभी मैं वो नहीं एक्सप्लेन, मैं वही एक्सप्लेन करने वाला था स्टार्टिंग में, बट यू टेक योर टाइम। डायरेक्टली ये स्टेप या ये स्टेप, ये जस्ट ट्राई टू कलेक्ट दोज टर्म्स हुज ऑर्डर इज लेस दैन और इक्वल टू 3। लेस इक्वल 3 के टर्म्स डायरेक्टली आप ये स्टेप देख के भी कलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि 1 माइनस जे स्क्वायर प्लस डी, ए माइनस बी होल स्क्वायर में कौन सा टर्म आने वाला था, ए माइनस बी होल स्क्वायर में, ए माइनस बी होल स्क्वायर में ए स्क्वायर मतलब डी रेज़ टू 4 नहीं आने वाला, हाँ, बट डी स्क्वायर आने वाला था, तो यहाँ पे एक डी स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आएगा, -2ab का टर्म आएगा, मतलब -2d क्यूब का टर्म आएगा, डायरेक्टली लिख सकते हो ये, ठीक है। ये ए माइनस बी होल क्यूब है, इसमें कौन से टर्म्स आ सकते हैं, ए क्यूब नहीं आएगा, -3a स्क्वायर भी नहीं आएगा, +3ab स्क्वायर नहीं आएगा, माइनस बी क्यूब आएगा, मतलब ये डी क्यूब आएगा, माइनस माइनस में प्लस हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो ही ऐसे डायरेक्ट करो, अदरवाइज 1 बाय 1 सॉल्व करके करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो इट डिपेंड ऑन यू, आपको समझ में आता है कि आपका कैलकुलेशन कैसे है, ठीक है। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग देन यू कैन गो विद दैट। ओके, सो आई थिंक हियर लेट अस स्टॉप। और इसमें क्या है, ओके, मे बी tomorrow I will give you some questions on this, okay, it's a practice test। एक इनिशियली आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो एक कल मैं एक लिंक आपको फॉरवर्ड करता हूँ ग्रुप पे, आई थिंक टुमारो इज़ हॉलीडे या नॉट और नॉट, आई डोंट नो, ठीक है। अगर कल छुट्टी है तो वो लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ, अगर लेक्चर से तो विल कंटिन्यू विद दी नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो मैं वैसे ग्रुप पे प्रॉपर डिटेल्स डाल देता हूँ, एंड वो एक टेस्ट आप ट्राई करो जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस। आप देखो कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, उसके मार्क्स में कंसिडर नहीं करने वाला हूँ, तो कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भी स्कोर आता है आपको पता होगा, मैं कहीं पे भी वो रिकॉर्ड मेंशन नहीं करने वाला हूँ। सो इट इज़ जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस, ओके। आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो आई विल शेयर दैट लिंक विद यू टुमारो। MCQs है उसमें, तो आप चेक करो कि आपको कितना अभी तक समझ में आ रहा है। बिकॉज नाउ ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ दिस शॉर्टकट मेथड। 2 ही केसेस पे रह गए जो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे। एनी डाउट फ्रॉम योर साइड?